Very good evening to all of you. I am Vikas Verma, former Assistant Advocate General and co-chairman of All India Lawyers Forum. So first, on the behalf of All India Lawyers Forum, I welcome you, Vandana ma'am, and Vandana ma'am is senior teacher of from the Art of Living, and we have with Pragya Prijat Singh, who is the foreign coordinator of All India Lawyers Forum, and we have with Vinod Kumar Goel, chairman All India Lawyers Forum. So over to Pragya Singh, kindly start this program. And we have with Maharavi Swain, advocate Supreme Court. So now let's start this program. Over to Pragya Singh. Hello, welcome, namaskar, and thank you so much for such a gracious and generous introduction, sir. I welcome you all to yet another amazing webinar organized by All India Lawyers Forum. And the topic that we are going to do today is very relevant. वो बेहद ही समसामयिक इशू है और मुझे लगता है इस समय इस चीज के बारे में बात करना बेहद आवश्यक था. इसलिए ये एक बहुत ही वेल प्लेस्ड वेबिनार है. तो मैं अपने ऑर्गेनाइजर्स को थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने हम सबको इस पोर्टल पे लेकर आया. एंड नॉट जस्ट दैट, अपार्ट फ्रॉम अस, द कीनोट स्पीकर जो आज हमारे बीच हैं, वंदना मैम, she took her busy she took time from her busy schedule और वो आज हमारे बीच में आई हैं, तो उनके लिए वी आर वेरी थैंकफुल. एंड अगर हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं थोड़े दिन पहले का एक एपिसोड बताना चाहूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई 14 जून को और इंसिडेंट ने हम सभी को बहुत ही झकझोर के रखा. एंड इट वाज अ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस एंड आई थिंक पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एवरी कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन could feel the same pain. और वो एक बहुत ही दुखद अनुभव था कि कैसे शाइनिंग स्टार को जो स्टारडम अटेन कर चुके थे इतनी यंग एज पे, he chose to take his own life. उस चीज को हम अभी भूले ही नहीं थे कि particularly when we talk about the legal fraternity, I had a college senior from Campus Law Center, Delhi University. She was a year senior to me, 2013 batch, Delhi University. Her name was Shikha Pandey. I pay my ट्रिब्यूट टू हर. उन्होंने कुछ 2 हफ्ते पहले अपनी जान ले ली. एंड अभी तक हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन पता है सिर्फ यही बात पता चली है कि ये सुसाइड का केस था. बट इस तरीके के ओलिगार्की, इस तरीके के नॉन मेरिटोक्रेटिक और एक एक्सप्लॉइटेटिव एनवायरनमेंट में जहां कट थ्रोट कंपटीशन है coupled with pandemic, I think everybody is so disturbed, and since nobody was ready for these unprecedented changes, so it has started taking a toll on everyone eventually over the period of time. So that is the entire point as to why we need to have a semblance between our personal and our professional lives. And until unless we don't feel good mentally, I think kahin na kahin asar hamari personal life, professional lives पे भी eventually आने लगता है. अगर हम नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की बात करें तो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के 2015-16 के अगर हम रिकॉर्ड्स पे जाएंगे तो उसमें हमें ये पता चलेगा that 1 out of every 20 human has some sort of depressing tendencies और उनको कहीं ना कहीं मेडिकल क्लिनिकल डिप्रेशन है. और ये फैक्ट्स और डेटा कहीं बहुत अच्छे नहीं है. इसे अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो we'll find that 1 out of every 8 human has anxiety or depression related disorders. So these are high times that we need to take this thing seriously and we need to talk about it. So this was the entire idea of having the webinar today, that amidst this pandemic and with such a busy life, it is very important that we take a pause and we take out time for ourselves and our beloved ones, keep a check and have a stress-free life. And probably that is when our efficiency will multiply and we are eventually going to do better. So to begin with, and passing on the baton, may I now welcome Vandana ma'am. And before giving the baton to her, I would like to introduce her. So Vandana ma'am आज हमारी keynote speaker हैं, and ma'am is an MBA and she has been an entrepreneur for last 18 years. Not just that, ma'am पिछले 20 सालों से
टीचिंग एक्सपीरियंस रखती हैं आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, which is an international organization founded by Sri Ravi Shankar ji, and she has taught advanced programs, meditation programs, happiness programs for youth and general publics, corporates, prisoners, government officials, etc. She's also heading a team comprising of more than 1,000 teachers, और ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक इंटरनेशनल प्रोग्राम जो कि स्टूडेंट्स के और चिल्ड्रन के बेटरमेंट के लिए है. She has also worked with major projects of art of living and is known for her touch of perfection and affection. May I now request Vandana ma'am to kindly come and solicit this occasion by telling the viewers her experience and beautiful sojourn. Thank you so much, Pragya, for inviting us over. And, this is really a burning issue. Before I go ahead with the issue, I would really like to thank and say it is such a warm welcome that you all have extended. I would like to say thanks to Advocate Vinod ji, Advocate Vikas ji, yourself, Pragya, and of course, Mahiravish Ryan. Slightly tough to pronounce. So thank you so much for having me over. And I hope I'm able to throw some light on how we can really manage in these kind of situations. So I would really like to start off with a story. Is that okay with you all? Wonderful. Definitely. So the story is of a monk. एक मंक थे और वो नदी क्रॉस कर रहे थे, और नदी जब बीच में जा रहे थे तो बीच में बहुत ठहरा हुआ पानी था, और जहाँ ठहरा हुआ पानी था उन्होंने बोट को वहां खड़ा किया और कहा कि यहाँ मैं मेडिटेट करूंगा. तो खेवैया को कहा कि why don't you just hold on for some time, I wish to meditate, there's a lovely breeze here. And as he was meditating, जब वो मेडिटेट कर रहे थे तो कुछ देर के बाद कुछ एक बड़ी जोर से झटका सा पड़ा उनकी बोट को. ऐसा लगा कि कुछ एक और बोट आके टकराई है. Another boat has probably come and banged it, and he got stirred up. And as he got stirred up, he got very angry. And as he got very angry, in his stillness, he recognized and he said, "What is this? Can't people see?" And suddenly he opened his eyes, and what does he see? He sees, yes, एक बोट ने टक्कर तो लगाई है, लेकिन वो बोट तो खाली है. And then this thing dawned on him. Actually, it is not the boat which has caused me all this. It is within me something. मेरे अंदर जो गुस्सा था वही बाहर निकल के आया है. तो रियली स्पीकिंग क्या होता है कि जो हमारे अंदर है वो बाहर आने लगता है. हो सकता है हमने दबा के रखा हो सकता है we've kept it under a carpet for years and years together. It can be anger, it can be our frustration, it can be, so much of negativity around us. So the moment some outer thing happens, जैसे अभी इस ज़माने में हुआ है for the last 3-4 months, so we see there is so much of impulse from outside, and this impulse is taking our smile away. This impulse is making us angry now. This impulse is taking our presence of mind away. This impulse is taking away the trust from us. This impulse is taking away the belongingness from us. And that is why what Pragya was talking about, some of these extreme cases, और जितना हम ये extreme cases के बारे में सुनते हैं उतना ही मन और विचलित होने लगता है. So really coming to the point, what do we need to do? How do we really take care of ourselves so much better, right? All of us want to know that. जहाँ एक तरफ, as lawyers, we are supposed to be such strong people with so much of resilience, so much of valor, so much of presence of mind, so much of, arguments, counter arguments. We can take the world along. However, ऐसा जब मौका आ रहा है तो हम खुद अपने अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है we need to stand up. We need to strengthen more. Right? Perfect. You can give a little bit more of smile at this. So what we can do. So let me introduce to you the concept of our 7 levels of existence, which is body, breath, mind, intellect,
memory, ego, and the self. Now, our body is at the gross level, right? It allows us to function, it allows us to function properly, and carry out our daily routines properly. If the mind is healthy, the body is healthier. We just take it like that for now. The second level is our breath. Are we all breathing right now? Let's check it out. Yes, many of us say yes. But thank God it's a happening. We are not breathing, but it's happening on its own. So, this breath, from the time we've taken birth till the time we go away from here, we are breathing constantly. But we are very unaware of it. Isn't it so? With every incoming breath, we are taking in oxygen and we are taking प्राण शक्ति. हम सबने सुन रखा है प्राण शक्ति के बारे में. और जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के साथ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ टॉक्सिन्स भी छोड़ते हैं. So actually it's a big reliever. Or the third is our mind. What does the mind do? Mind perceives all that is happening outside us. जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, टच के माध्यम से फील कर रहे हैं. All that is going on around us, how we are perceiving that is what the mind is doing. And then of course we have our intellect, जो बुद्धि है, हर चीज का डिसीजन लेती है, जजमेंट्स पास करती है. हमारी मेमोरी है जो हर एक्सपीरियंस को स्टोर करती है. And then is our ego and our self. So we will talk a little bit more on the first three today. Understand, is there a relationship between the three of them? तो थोड़ा सा इसको समझते हैं. हम सबको जब गुस्सा आता है तो शरीर में क्या होता है? कलर रेड हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और क्या होता है? कपकपी सी आने लगती है. गुस्सा आता है तो वी इवन क्लेंच आवर टीथ, राइट? और हमारी सांस तेज तेज चलने लगती है जब गुस्सा आता है. जब हम थोड़े दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो हम कैसे सांस लेते हैं? सांस भी बड़ी भारी भारी लेते हैं. ऐसा होता है ना? आउटगोइंग ब्रेथ इज मच हैवियर. और शरीर पे क्या असर होता है? शरीर पे कलर पेल होना शुरू हो जाता है और ब्लड प्रेशर डाउन होने से लगता है, लस्ट पस्त से हो जाते हैं. So there is a direct correlation between the mind, body and the breath. जब खुश होते हैं तो फिर सांस कैसे चलती है? Just like a wave. शरीर कैसा रहता है? Very very light. चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहती है, right? So it's so wonderful. तो ये सब जानने के बाद एक वाइज व्यक्ति क्या करेगा? Wisdom is to understand that if there is a connection with the breath, let's work on our breath, right? So let's do a small exercise here. Let's close our eyes. आंखें बंद करते हैं. जो भी अगर कुछ हम साथ के साथ कर भी रहे हैं तो उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए और आंखें बंद कर लेते हैं. एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा सा. आइए. तो सब कुछ छोड़ के आराम से बैठें और आंखें बंद कर लें. और आंखें बंद करते हुए अपनी सांस की ओर ध्यान ले जाते हैं. लेट्स टेक आवर अटेंशन टू आवर ब्रेथ. द इनकमिंग ब्रेथ and the outgoing breath. Let's keep observing. धीरे धीरे सांस लें और जाने दें. बीच में मन कहीं इधर उधर जाता है तो कोई बात नहीं, वापस से उसको सांस पे लेकर आए. एक दो और.
आंखें बंद करके करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और धीरे से आंखें खोलें। सो क्या पाया? मन शांत है? कितने लोगों का शांत है? सो यू कैन एक्नॉलेज। मन थोड़ा शांत फील हो रहा है, यू कैन एक्नॉलेज, राइट? थम्स अप और विच एवर वे। तो इसको जब हमने ध्यान सांस पे रखा तो क्या नोटिस किया कि मन इधर उधर कहीं नहीं गया, या कहीं गया भी तो फिर वापस लौट के आ गया। जनरली व्हाट हैपेंस इन द माइंड? माइंड इज लाइक अ हाईवे. A highway is like full of traffic, and there is so much of traffic, so obviously the vehicles cannot move very fast. तो इसी तरह से हमारे मन में भी होता है, जब विचार बहुत सारे हैं, बम्बार्डमेंट चल रही है, तो उस समय पे जो मन है वो तेज गति से काम ही नहीं कर सकता, वो बार बार वहां अटक जाता है, राइट? तो जब हम सांस हमने लिया तो अभी क्या हुआ? हमारे थॉट्स भी हमें दिखने शुरू हो गए, हमें महसूस होने शुरू हुए कि हमारे थॉट्स क्या चल रहे हैं, या वो भी सेटल हो गए। और जैसे जैसे थॉट सेटल, सांस सेटल होती गई, थॉट सेटल होते गए, जैसे जैसे थॉट सेटल होते गए वैसे वैसे मन शांत होता गया। डिड यू ऑब्जर्व दिस? इजंट इट सो वंडरफुल? यू नो, इट्स लाइक आवर माइंड इज लाइक अ काइट। हमारा मन जो है वो पतंग के जैसा है, और पतंग का काम क्या है? उड़ते रहना। जो भी आंधी आए, हवा आए, जिस डायरेक्शन में आए, पतंग को तो उस तरफ ही उड़ना है। लेकिन एक अच्छा पतंगबाज क्या करता है? वो जानता है कि डोर को कैसे खींचना है और पतंग को कैसे काबू में रखना है। Isn't it so? So the breath is so important. The breath is like a string. सांस जो है हमारी वो डोर है। सो जैसे जैसे हम उस डोर को ऑपरेट करना सीख जाते हैं, वैसे वैसे हमारा मन भी हमारे काबू में आने लगता है। नहीं तो मन किसके काबू में है? यहाँ ये चल रहा है, वहां वो चल रहा है, इसने ये कहा है, इसने ऐसा कहा है, इसने ऐसा क्यों कहा है, इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, and it goes on and on and on and on endlessly. Isn't it so? Absolutely. So recognizing that we have got सिरा हमें मिल गया है। सिरा क्या है? Our breath. With the breath, we can manage our mind so much better. Let's learn a very short technique here to take care of our mind a bit more. Do you all want to learn that? It'll be very, very helpful tip for you all. So we will see how do we breathe. Do we breathe properly or we don't breathe properly? So एक काम करते हैं, अपना राइट हाथ अपने पेट पे रखते हैं, लेफ्ट हाथ चेस्ट पे रखते हैं। एक हाथ पेट पे, एक हाथ चेस्ट पे। और अब आंखें बंद करते हैं, और आंखें बंद करके पूरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और महसूस करते हैं कि हमारे पेट को क्या हो रहा है और चेस्ट को क्या हो रहा है। What's happening to our stomach or our chest as we breathe in and as we breathe out? पहले थोड़ा ऑब्जर्व करें। Again, this is an experiment. तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? कुछ लोग का पेट बाहर आ रहा है सांस लेने में, कुछ लोग का पेट अंदर जा रहा है, कुछ लोग की चेस्ट एक्सपैंड हो रही है सांस लेने में, कुछ की कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। So what is the right way of breathing? The right way of breathing is when we breathe in, our chest expands and then our stomach also comes out. The air is not going into the stomach, so don't worry about it. When we breathe in full, our lungs expand and they push the sternum down, and that pushes the stomach out. And that is the right way of breathing, wherein we fill our lungs and then our stomach also. So abhi ek kaam karte hain, aankhein band karke we will do that together and see, does the magic work?
Let's close our eyes once again. Very slowly and gradually fill up your chest and now your stomach. As you breathe out, let your stomach go in, chest contracts, and near your neck also, your throat, everything empties. धीरे धीरे सांस को महसूस करते हुए through the throat, your lungs, and then the stomach comes out a bit. As you breathe out, सांस छोड़ते छोड़ते पेट अंदर की ओर जा रहा है, छाती भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सांस पूरी बाहर. धीरे धीरे allow your breath to come in, fill up your lungs, chest expands, and then the stomach also comes out. As you breathe out, stomach goes in, chest contracts, पूरी सांस बाहर. धीरे धीरे अपने आप करें 2-3 बार. Fill up and expand. As you breathe out, खाली होते हुए कॉन्ट्रैक्ट करते जाएं, पेट को भी, छाती को भी. Let's continue with this. As you are doing this, you will realize that your breath has a rhythm to it. पहले कहीं टूट टूट के आ रही थी सांस, अब स्मूथ होती जा रही है. Relax your hands, keep your eyes closed. आंखें बंद रखें, हाथों को भी ढीला छोड़ दें. अपनी गोद में रख लें, दोनों हथेलियां खुली, आकाश की. आंखें बंद ही रखते हैं थोड़ी देर. ध्यान अपनी सांस पर. एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें. चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए तो और भी अच्छा है. With a smile, breathe in, and with a smile, breathe out. शरीर में कहीं भी अकड़ाहट है, थोड़ा हिल-डुल के ठीक कर लें. कंधे, बाजू, पाँव. थोड़ी देर शरीर को स्थिर रखते हैं. आई एम श्योर आपके फोन साइलेंट पे हैं और कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है अभी. वातावरण में जो भी आवाजें आ रही हैं, उनकी ओर ध्यान ले जाएं. Become aware of the noises around you. Could be the fan, the AC, people talking in the other room, or whatever else. Accept these noises around you. Be with them. Now you are in harmony with your surroundings. Take a deep breath in and breathe out.
Become aware of your body. आंखें बंद ही रखें, स्थिर रहें. Your body is a beautiful gift to you by nature. Respect and honor your body. Take your attention to your feet. बिना हिलाए डुलाए केवल मन से ध्यान अपना पाँव में ले जाएं. अपनी legs में genitals, stomach, chest, right arm, left arm, throat, face, head, your whole body. एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें. Become aware of your thoughts. Good thoughts, bad thoughts. जैसे भी विचार हैं उन्हें आने दें, रोके नहीं. Now you are in harmony with your thoughts. एक और सांस लें और जाने दें. Become aware of your feelings. अपनी भावनाओं की ओर ध्यान ले जाएं. प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, सुखद या दुखद, जैसी भी हैं. Just observe. Be with them. You are peace. You are joy. आप ही शांति और आनंद हैं. Repose in your nature.
अपने आप में विश्राम करें। आंखें बंद ही रखें। धीरे से अपना ध्यान अपनी भावनाओं की ओर ले जाएं। Become aware of your feelings. Become aware of your thoughts. अपने विचारों की ओर ध्यान ले जाएं। Become aware of the sensations in your body. Become aware of your surroundings. एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। Take another deep breath in and breathe out. और धीरे से आंखें खोल लें। Slowly you may open your eyes. अभी मन कैसा है सबका? कैसा रहा? वंडरफुल, वेरी नाइस। अब ये आप देखें कि हमने क्या किया। सबसे पहले तो हमने अपनी सांस पे ध्यान दिया और सांस को सेटल किया। आप देखें कि एक बच्चा जो है, आपने एक बच्चों को देखा होगा सांस लेते हुए, वो जब लेटे होते हैं तो किस तरह से उनका पेट ऊपर नीचे जाता है। जब वो सांस लेते हैं तो पूरा जैसे पहाड़ी बन जाती है और फिर सांस छोड़ते हैं नीचे आ जाते हैं। हम भी बच्चे थे, हम भी उसी तरह से सांस लेते थे, लेकिन धीरे धीरे जो जिंदगी के स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेन्स हैं, उन सब के साथ आते आते हम ठीक से सांस लेना भी भूल गए। है कि नहीं, ये ताज्जुब की बात। तो आज जो हमने पहले सीखा वो है कंप्लीट योगिक ब्रेथ। तो पूरी तरह से सांस कैसे ले सकते हैं। तो जब हम सांस पूरा लेते हैं तो क्या है, हम ऑक्सीजन भी अच्छे से लेते हैं, प्राण शक्ति भी अच्छे से लेते हैं,
और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टॉक्सिन्स को भी अच्छे से बाहर निकाल सकते हैं. This itself gives a lot of relief to our emotions. एंड जब इमोशंस को रिलीफ है तो हमारे माइंडसेट भी रिलीफ है. हम क्लियरली सोच सकते हैं. अभी देखो मन कैसा है. उसके बाद हमने क्या किया? We meditated for some time, almost 15 minutes. और यही मैं आपको शुरू में कहती कि चलो बैठेंगे ध्यान करेंगे, तो हम में से कितने लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ध्यान मेरे बस का नहीं है. आई डोंट थिंक आई कैन मेडिटेट. आई कैन नॉट सिट एट वन प्लेस फॉर सो लॉन्ग. बट आराम से हमने करा, बैठे, आंखें बंद करी और धीरे धीरे जैसे जैसे सुनते गए, करते गए, तो क्या हुआ? मन धीरे धीरे शांत होने लगा. और जैसे जैसे मन शांत होने लगा, बाहर की तरफ से हम अपने अंदर गए और अपने अंदर जाकर वहां हमने कुछ देर विश्राम किया. और जब वापस आए विश्राम करके, तो देखा जो पहले हलचल चल रही थी हमारे इमोशंस की, वो तो अब नहीं थी. Did you all notice that? फिर हमने नोटिस किया जो विचारों की एक बम्बार्डमेंट थी, वो भी नहीं थी. फिर हमने नोटिस किया कि शरीर में जो हमारे इतनी वाइब्रेशंस हमें महसूस हुई या कुछ हलचल महसूस हुई, जो पहले हमें पता भी नहीं चल रही थी. और फिर वातावरण की ओर जब ध्यान लेकर गए, तो क्या महसूस किया? कि हाँ, मैं इसके साथ आराम से हूं. तो मेडिटेशन जो है वो हमारे को अंदर लेकर जाती है, और जितना हम अंदर जाते हैं उतना ही जब बाहर आते हैं तो स्ट्रांग बन के आते हैं. मेडिटेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. और ये कोई आज की हमारी बनाई हुई थोड़ी है, तो युगों से चल रही है. सिर्फ हम उसको समझ नहीं पाते तो करते नहीं हैं. सिर्फ उसको जान नहीं पाते हैं तो करते नहीं है, या जानना चाहते हैं इंटेलेक्ट से, लेकिन ध्यान के समय बस सब कुछ छोड़ के बैठ जाना है थोड़ी देर. भगौड़े नहीं बनना है, लेकिन ये लाइफ में हमें और ज्यादा केपेबल बनाने के लिए बहुत जरूरी है. शुरू में बात हुई कि हमारी पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कैसे लाया जा सके. एक पैमाने पे देखें तो कुछ फर्क नहीं है. अगर हम इंटरनली स्थित हैं, यू नो, if we are resilient, then what happens? We become perseverant also, right? Then we are not scared. Our confidence is also high. Our courage is also high. But internally, when somewhere something shakes us up, एक हिलती हुई टेबल है, आप उस पर कुछ भी, चाय का प्याला भी रखेंगे तो प्याला भी हिलता रहेगा. तो हमें क्या करना पड़ता है? टेबल को पहले स्टेबलाइज करना है ताकि टेबल आराम से बैठ सके. सेम हमारे अंदर है. हमारे अंदर जब आराम से बैठेगा तो वही रिफ्लेक्शन बाहर आएगी. जैसे मंक ने रियलाइज किया कि ये तो मेरे अंदर ही जो है वही बाहर निकल के आ रहा है. तो हमें क्या करने की जरूरत है? अपने अंदर को रिलैक्स करने की, अपने अंदर को विश्राम देने की. हम बाहर विश्राम ढूंढते हैं किसी किसी चीज में, कुछ पाने में विश्राम, कुछ ये हो जाए तो विश्राम. नहीं, विश्राम जो है सही मानों पे अपने अंदर है. सो वी नीड टू इन्वेस्ट इन आवरसेल्व्स. हम बाहर तो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन अपने अंदर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है. और जैसे इन्वेस्ट करते रहेंगे उतना ही अपने अंदर इस शांति को यही महसूस करेंगे. So at this juncture, I would say if there are some questions, I can take them up. So was it good? You think this was useful? Yes. Yeah. So if there's some questions, I'd be happy to take them up. सर क्वेश्चंस अभी पूछने हैं या थोड़ी देर बाद के लिए रखें हम, एंड ऑफ द सेशन के लिए? एंड ऑफ द सेशन में ही रख लेते हैं मेरे ख्याल से. ओके, सो वी कैन वेट फॉर अ व्हाइल. थैंक यू सो मच वंदना मैम. आपने आपकी सारी बातों का मैंने एक सार समझा कि हमें अंदर का विश्राम अटेन करना सबसे आवश्यक है. बाहर तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट जो अंदर का ट्रैंक्विल है वो हम अटेन नहीं कर पाते हैं.
So there was a point when I was doing it and I literally started feeling sleepy. तो मुझे लगा कि and these are very simple things that जिसके लिए हमें कोई official training लेने की जरूरत नहीं है. A moment of pause and all we have to take is deep breath and introspect. और बहुत सारी ऐसी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं जो हम भागती दौड़ती जिंदगी में और इस निराशावादी माहौल में नहीं समझ पाते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एनलाइटनिंग सेशन. और बाकी तो बाद में भी हम सवाल जवाब करेंगे. और I would like to submit something because it's very amazing and मुझे वर्मा जी ने कई बार कहा कि ध्यान लगाओ और मुझे काफ़ी बार इन्होंने मतलब चीज़ें कही और मैं इनसे हर बार यही कहता रहा कि यार ये अपने से नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत कोशिश करने के बाद. लेकिन आज जब मैंने इसको स्टार्ट किया आपके साथ तो वाकई में इतना रिलैक्स फील हुआ और मतलब लगा कि हाँ हम कर सकते हैं. बिल्कुल. तो इसी के लिए जैसे प्रज्ञा मैं आपकी इस बात पे थोड़ा सा और ऐड करूंगी विनोद के लिए, that many a times we feel we don't need to learn this. It's as simple because what you have seen right now is only the tip of the iceberg, right? But really how to attain that state, we need a formal training. देखो हम science सीखते हैं तो we need a teacher. हम लॉयर भी बनते हैं तो वी नीड समबडी टू टीच अस, यू नो. हमें मॉक सेशंस भी हम करने जाते हैं, सब कुछ भी करते हैं. देयर इज समबडी हु टेल्स अस नो, यू नीड टू स्पीक लाइक दिस, यू नीड टू स्टैंड अप लाइक दिस, यू नीड टू फाइंड योर फैक्ट्स लाइक दिस, एंड दिस इज हाउ यू कैन डू योर काउंटर आर्गुमेंट्स और आर्गुमेंट्स देयर, राइट? So we need a teacher for everything. Same way to go within also, it is like a journey, and for that journey also you need somebody to handhold you. Each one of us needs somebody to handhold us in life to take us in the right direction, you know. So meditation is also such a beautiful journey of going within, I would like to say, just adding on to where we left. yeah, I'm happy that you enjoyed, and I'm sure many more would have. ma'am, probably you are the only guest since so many webinars जिसने हम सब वकीलों की बोलती बंद करा दी. वहाँ पे हमेशा बातें होती हैं. So probably you are the only guest जिसने हम सबको चुप कराया. तो आप definitely हमारी गुरु हैं और बहुत ही अच्छा लगा. So yeah, definitely anybody can be a teacher, but आपने अभी इस प्लेटफॉर्म पे आके, because हम लोगों की खुद की लाइफ मैम बहुत ही स्ट्रेस्ड होती है. And I personally remember when I was the legal counselor at तिहाड़ जेल, वो शायद मेरी लाइफ का बहुत ही टर्निंग पॉइंट मोमेंट था, क्योंकि हम वकील हैं, हमारे पास हर कोई अपनी परेशानी ही लेकर आता है, बट हम अपनी परेशानी किसे बताएं. तो और स्पेशली जब आप जेल जाते हैं, जब आप चार दीवारी के उस तरफ जा रहे हैं जहां बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, एंड एवरीबडी हु स्टेज देयर हैज सम और द अदर फॉर्म ऑफ ट्रबल, और वो इतनी वहां पे फ्रस्ट्रेशन है, इतना डार्क माहौल है कि वहां 3 घंटे समय बिताने के बाद जब मैं बाहर आती थी तो मुझे लगता था मैं किसी इंसान को देखना नहीं चाहती हूँ. तो मुझे अपना सिस्टम क्लेंस करने के लिए भी काफी समय लगता था. उस समय मैंने मेडिटेशन किया एंड इट रियली हेल्प मी. तो हमारे प्रोफेशन में डेफिनेटली बहुत स्ट्रेस है, एंड प्लस अभी स्पेशली जब से पैंडेमिक का समय आया है, ये सारी चीजें कपल्ड होती जा रही हैं. तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा हम लोगों ने खुद पॉज लिया इस वेबिनार के माध्यम से, जहां हमने बोला कि हमें स्ट्रेस को हैंडल करना कितना आवश्यक है. एंड अगेन इट वाज अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू. और बात करने से पहले मैं भाईरविश मैम को इनवाइट करना चाहूंगी, जो आपको ऑफिशियली वोट ऑफ थैंक्स करेंगे. एंड मैं एक बात उससे पहले सिर्फ ऐड करना चाहूंगी. व्हेन यू टॉक अबाउट प्रिजन्स, so I have taken a lot of programs in the prison also, Tihar Jail. So the happiness program, even advanced programs, silence programs also. And आपको मालूम होगा कि यहाँ तिहाड़ जेल में और इंडिया भर में बहुत सारी जेल्स में, स्पेशली तिहाड़ जेल में तो अलग से बैरिक्स भी थे आर्ट ऑफ लिविंग पे. तो और मैं अक्सर बाहर आके लोगों को बोलती थी जो वहाँ कोर्स किए हुए हैं और जो उधर एडवांस कोर्स कर रहे हैं, उनका अगर आप बल्ब देखें तो 100 वॉट का बल्ब होता है उनके चेहरे पे. इतनी रौनक और इतनी रोशनी होती है. सो समटाइम्स यू नो, ठीक है जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट दे कैन बी टेकन केयर ऑफ. वो जो प्रॉब्लम है उसको तो चेंज नहीं कर सकते, इस परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस परिस्थिति में हम कैसे रह सकते हैं
वो हम अपने हाथ में कर सकते हैं कंट्रोल. And that can happen through many of these practices like Sudarshan Kriya we can learn more pranayams. तो अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट जरूर करें. मैं आप सबसे यही बात कहूंगी, जहाँ पे भी आप हैं, इंडिया में हैं, बाहर हैं, put yourself, these classes are available everywhere, so spend some time there. Thank you very much. And now to all our viewers, I would like to introduce Mahir Ravish ma'am. And ma'am is an advocate and a mediator at the Supreme Court of India. Not just that, she's also a member executive and Supreme Court Women Lawyers Association. She's also a managing partner at the Altmish Jain and Company Law Consultants. तो मैम ऑफिशियली आके वोट ऑफ थैंक्स करेंगी. एंड मैम को मैं कॉरिडोर्स में अक्सर मिली हूँ. एंड इट्स ऑलवेज गुड कि वेबिनार में सब एक दूसरे से मिल लेते हैं. सो पासिंग ऑन टू यू माय रविश मैम. I would like to add one more thing. In the legal field, there is no need to giving any introduction of Miss Rain. I'm sure. Then please unmute yourself. You're not audible. It shows you're mute. Yes, ma'am. Please. Yes, ma'am. Thank you so much for your so generous and kind words, and Prajakta, you too. Thanks to pandemic, we haven't been able to meet, but this definitely is a platform where we have been able to join, and it gives me immense pleasure to be given this opportunity to to deliver the vote of thanks. Before I do that, I just want to add one very small thing here. As lawyers, yes, we do come across several several types of stress. We have client stress, we have our own personal life stress, and then there is some other sort of stress we are not able to express to anybody. For which I feel that as a human being first, it is necessary for us to create that platform for each other, to come down openly to each other, to reach out to anybody if we have some problem. Let's say I have a problem. I should be able to reach out to Vikas ji, or let's say Prajakta ji, or for that sake, Vandana ji, uh, without any hesitation. Now coming back to my vote of thanks, I'd like to thank our keynote speaker, Vandana Adeshji, today for enlightening us, for giving us such a wonderful lecture, for motivating us on today's topic, that is how to live stress-free life. We are much obliged to you for sharing such valuable and unique information with our participants, ma'am. Thank you so much for joining us at just one call. And in future also, we look forward to getting this opportunity with you, that we could reach out to you whenever we are in trouble or we have some stress, and even otherwise, for your blessings and your guidance. I would also like to thank to all the participants of today's webinar. I would finally like to give a special thanks to all our special pillar, our strong pillar of All India Lawyers Forum, National and State Executive Team members, National Executive Chairman, Mr. Vinod Kumar Goyalji, former Delhi Government Council, National Executive Co-Chairman, Mr. Vikas Verma ji, former Additional Advocate General of Haryana Government, President Abhinav Singh ji, National Coordinator Mr. Suvir Sidhu, Advocate Member Bar Council Haryana and Punjab, Vice President Rashmi Bansal ji, Secretary Vikram Dhama ji and Naveen Gupta ji, Treasurer Balraj Puri, Advocate. I would also like to give my thanks to National IT Head Mr. Manvinder Singh and our dear Prajakta. She's our Foreign Division. Pragyan, sorry.
Pragya, and she's a foreign division coordinator also. She's an advocate here in Supreme Court. I would also like to thank our academic division coordinator, Professor Dr. Mohit Sharma, Delhi State Coordinator, Mr. Sandeep Garg, Advocate, Punjab State President, Mr. Bikramjit Singh Jatana ji, Chandigarh State President, Mr. Amandeep Singh, Haryana State President, Mr. Udit Mehndi Ratta ji, Jharkhand State President Mr. Dipesh Kumar Nirala, UP State President Mr. Sagar Sharma, MP State Coordinator Mr. Dharminder Singh Malviya ji, Andhra Pradesh Coordinator Mr. Anil Kumar Jaldi, Gujarat State Coordinator Mr. Bhagyodaya Mishra ji, Jammu and Kashmir State Coordinator Mr. Furqan Sofi, I'm sorry. Assam State Coordinator Mr. Biswajit Hazarika, West Bengal State Coordinator Ms. Jahan Ara Kulsum and Subhajit Ghosh Dastidar, Maharashtra State President Durgesh Gupta ji, Rajasthan State Coordinator Sandhya Singh, and Tamil Nadu State Coordinator Mr. Chandrasekhar. I'd also like to thank my student wing coordinators Shubham Singhal and Riya and Bhagyashri, and all other respected team members of All India Lawyers Forum. Thank you so much once again for joining us here today for this and making this session a really remarkable one and a memorable one. Thank you so much, Maya Ravish ma'am. And we are about to end our webinar. And विकास सर ने मुझसे कहा था क्योंकि मैं जब खाली समय में रहती हूँ तो मुझे ऐसी कुछ कविता वविता पढ़ने का शौक है, तो एक मेरी काफी पसंदीदा कविता है जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी थी, तो उनकी कुछ 3-4 पंक्तियां वही मैं आपको कविता सुनाना चाहूंगी और उस नोट पे एंड करना चाहूंगी। तो कविता कुछ इस प्रकार की है जो मुझे लगता है कि इन डिस्ट्रेस्ड और इस तरीके के समय के लिए हमें अच्छा महसूस कराते हैं और हमारे अंदर स्फूर्ति लाते हैं। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में फूट प्यार में, क्षणिक खुशी में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो इस नोट पे मैं खत्म करना चाहूंगी यहाँ का वेबिनार। थैंक यू सो मच वंस अगेन वंदना मैम, महाराज मैम। प्रोग्राम था इसमें बहुत अच्छा जो आज का ये हमारा सेशन रहा है एट द एंड, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था आज हम लोग बहुत अच्छा इस वेबिनार को रखेंगे और इस जितना हमारी सोच थी उससे ज़्यादा बेहतर हो पाया ये, क्योंकि ये हैप्पीनेस प्रोग्राम भी हमारा है। तो लास्ट में जाते जाते मैं सॉरी विदाउट परमिशन ऑफ माय गेस्ट मैं इसमें एक राहत नौरी साहब की कविता है उसको भी ऐड कर देता हूँ, ताकि जाते जाते ये जो मुस्कुराहट मैडम ने आज हमें वंदना मैम ने दी है वो बरकरार रहे शाम तक। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे, लगेगी आग तो आएंगे और कई गद में घर, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। ये जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है, ये जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी हथेली पे जान थोड़ी है। ये आज साहिबे मसनद है, मसनद होते हैं जो फिलहाल तख्ता
नसीब होते हैं जो आज की सत्ता में सत्तारूढ़ पार्टी होती हैं, लेकिन मेरा उनसे कोई यहाँ कहने का मकसद नहीं है, तो प्लीज़ डोंट टेक इट द पॉलिटिकल। जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। एक सिर्फ लाइन मैं भी फिर इसको कहने के लिए एंड करूंगी, जो गुरुदेव कहते हैं, श्री रविशंकर जी। तो वो ये कहते हैं कि हंसो और हंसाओ, मत हंसो मत हंसाओ। बिल्कुल सही बात है। लाइफ को बहुत सिंपल रखो, बिल्कुल सरल शब्दों में सिंपल रखो, लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो, खुद भी खुश रहो, अपने आसपास भी सबको खुश रखो, मत फंसो मत फंसाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं लाइफ की, इसमें मत फंसो और ना ही औरों को फंसाओ खुद उसमें फंसने के बाद, है ना। तो खुद भी फ्री रहो, औरों को भी फ्री करो और मुस्कुराते रहो। So with that, thank you so much once again. Before we go, there is one one of our viewers who has put one question which even I feel we should ask you. We frequently get disturbing thoughts. Sanjay Shahji says we frequently get disturbing thoughts. So how to control? जब जाते जाते इस पर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो एक काम करते हैं, फिर अगर आप मेरे को 2-3 मिनट देते हैं तो इसको लेती हूँ मैं। Of course, मैं करते हैं, फिर एक और एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं, आंखें बंद करते हैं। चलिए आंखें बंद, और आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब आपने कुछ भी सोचना है, think of anything, you're free to think of anything, but it should not be a dancing monkey, especially blue in color, which is peeping from the window and making faces at you. आप कुछ भी सोचें, लेकिन वो एक नाचते हुए बंदर के बारे में ना हो जो नीले रंग का है, जो आप पे चेहरा बना रहा है। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें और आंखें खोल लें। क्या पाया? वही बंदर, राइट? Get rid of that monkey. Can't. अगर देखा भी नहीं तो अपने आप को मजबूर किया, मुझे बंदर नहीं देखना, मेरे को कुछ और देखना है, यानी मन फिर भी बंदर में ही अटका रहा, राइट? Exactly like that in life. Whenever we want to run away from anything, be it negative emotions, be it negative things, be it some people जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, राइट? तो जितना हम भागते हैं किसी थॉट से, ये थॉट मुझे ना आए, ये विचार मुझे ना आए, मुझे कंसंट्रेट करना है अपने काम में, उतना ही वो विचार बार बार आता है। Now the question is, how do we manage it? So breath is a beautiful way that we have learned today, managing with our breath. So we learn a lot of pranayams on the program which help us become more centered. We learn Sudarshan Kriya, which is again a breathing technique. और आज तो पूरी दुनिया में सुदर्शन क्रिया को everybody acknowledges it, including AIIMS, NIMHANS, and scientists all over the world. So when we do the Sudarshan Kriya, we are able to release the negative emotions from our system, and thereby we become so much more centered. So ये practices करने से क्वेश्चन है मेरे पास। Sorry, एक लास्ट में क्वेश्चन आया मैम मेरे पास, उत्तर प्रदेश लखनऊ से मैम जी। कैन आई आस्क मैम? हाँ बिल्कुल, प्लीज विकास। मैम ये रोहित सिंह है, ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आपने सारी चीज़ बताई, ब्रीदिंग पैटर्न्स से लेके योगा, मेडिटेशंस और गुड डाइट वगैरह सारी जो चार्ट है, उसका एडवोकेट्स की लाइफ पर डायरेक्ट इफेक्ट क्या? जिस तरह से एडवोकेट्स को पढ़ना बहुत होता है, रीडिंग बहुत होती है और कंसंट्रेशन का भी बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उसमें डायरेक्टली किस तरह से ये चीज़ें हेल्प करेंगी मैम, वो पूछना चाह रहे हैं, और कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है उनके लिए जिसको फॉलो करेंगे? मैं ये कहूँगी हर एक के लिए ज़रूरी है, बी इट अ स्टूडेंट, एडवोकेट्स आर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ, राइट? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का काम है और वी हैव टू बी सो अप टू डेट विद ईच एंड एवरी पॉलिसी, ईच एंड एवरी रूल, रेगुलेशन, सो एंड सो फॉर्थ। सो आई फील जितना
एक तो जो बिजी है उसको मेडिटेट करना बहुत जरूरी है, उसको योगासन करना जरूरी है। जितना किसी का कंसंट्रेशन का काम है उतना ही उसको और ज्यादा ये करने की जरूरत है। किसी आप एक कंप्यूटर ही ले लीजिए, इसको आप 24 घंटे ऑन रखेंगे कई दिन तक, तो व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स सो हीटेड अप, राइट? आप कार भी चलाते हैं और उस पर एक्सेलरेशन पे नहीं चल सकते ना, यू हैव टू अप्लाई ब्रेक ऑल्सो। सेम वे इन लाइफ, whatever we are, wherever we are, whatever we do, we need to keep our one foot on the brake also. हमारा जीवन केवल एक्सेलरेटर पे पाँव रख के नहीं चल सकता, उससे एंट्रोपी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब एंट्रोपी होगी अंदर हीट अप हो जाएगा, बर्नआउट होना शुरू हो जाते हैं, और जब बर्नआउट होना शुरू होते हैं तो दैट इज व्हेन वी सी सिग्निफिकेंट fall in the levels of concentration. We see significant rise in our aggression. We see significant rise in, discords and conflicts. To be able to manage our mind so much better, so that it stays more focused, so bringing in more clarity of mind also. When we do some breathing practices, we take care of our diet also. I hadn't spoken about diet today, so good that they mentioned it. So diet is also a very important part of it. So that is a source of energy for us. Sleep again is something that we need to take care of. So meditation, sleep, our food, and our breath. So when we look after all these aspects of our life, we become very complete, and thereby our perception improves in life. So when our perception improves, we are able to manage the situations much better. Yeah. जी मैम। Thank मैम you so एक much. छोटा क्वेश्चन और है, जी। आप मैम किस जो कोर्सेज हैं वो कोर्स के ऊपर थोड़ा हाईलाइट करेंगे, कितने टाइप के आप कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं और किस तरीके से इस लॉकडाउन में हम कर सकते हैं? कुछ लिसनर्स का क्वेश्चन है, क्या मेथड है अभी उनको? डेफिनेटली। सो द गुड न्यूज इज कि लॉकडाउन में ऑनलाइन प्रोग्राम्स खूब स्टार्ट हो गए हैं आर्ट ऑफ लिविंग के। जैसे हैप्पीनेस प्रोग्राम है, विच इज अ बिगिनर्स लेवल प्रोग्राम। इट इज दीज डेज कॉल्ड एज मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप। तो ये केवल 4 दिन का 2 घंटे ईच, विच मीन्स इट्स एन 8 आवर प्रोग्राम ऑनलाइन, और ये हमारे अनुसार काफी फिक्सअप हो जाता है। जनरली मॉर्निंग्स या इवनिंग्स में होते हैं, विच वर्क्स वेल फॉर प्रोफेशनल्स एज वेल। So 2 घंटे प्रतिदिन is not too much to invest. So we learn some principles about life, how to manage our life better. At the same time, there are some processes which take us more within, and our understanding improves. And of course, there are these breathing practices that I've already spoken about, Sudarshan Kriya, pranayams and all. So beginners level पे ये program है for adults. The बच्चों के programs अलग हैं। और इसके अलावा then whoever has done this program can move forward, move upwards, or go deeper, one should say, in the advanced meditation programs which are also happening online. So they are 3 full-day programs. तो जिन लोग ने भी happiness program किया है या online happiness किया है, वे लोग आगे बढ़ के advanced programs कर सकते हैं। उसमें खूब meditations होती हैं, silence भी होता है, और साइलेंस में हम अपनी एनर्जी को पूरा कंजर्व करके वी स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग सो मच मोर. So there's an opportunity we get for more introspection, more looking within, and when we come out of it, we are like much cleaner. It's like दिवाली के टाइम का सफेदी घर में हो जाना. So that's exactly what happens. So I would say for general public, these 2 programs would work very well, and you can join any of the programs which are running anywhere in your cities. और उसके अलावा अगर आपका अपना कोई ग्रुप बनता है और ऐसा लगता है कि आपके कोई ग्रुप ने प्रोग्राम करना है, तो यू कैन गेट इन टच विद अस एंड वी कैन गाइड यू अकॉर्डिंग टू दैट. और बच्चों के प्रोग्राम्स भी हैं इसके अलावा, definitely. So ma'am, lawyers can improve communication skills after joining this program? देखिए कम्युनिकेशन क्या है? हाँ, कम्युनिकेशन तो देखो ना, यू आस्क्ड अबाउट कम्युनिकेशन, राइट विकास? या सो कम्युनिकेशन क्या है? जो मैंने कहा आपने उसको वैसे समझ पाए, मैं उस बात को इस तरह से कहूँ कि मेरी बात आप पकड़ पाए, राइट? दैट इज अ कम्युनिकेशन स्किल. ये कब पॉसिबल है?
जब मैं जहाँ भी बैठ के वहाँ की लोग का मनस्थिति समझ सकूं और उनकी मनस्थिति के Correct. अनुसार अपनी बात कह पाऊं, right? That means I need to have Yes. that level of sensitivity, that level of awareness, that level of openness to recognize who I am talking to, so that I am able to use the right kind of words, I am able to use the right kind of pauses, I am able to use the right kind of lingo to be able to Yeah, ma'am. read to you in the same way. और ये कब possible है? तो मेरा ये बड़ा strong मानना है कि when we become meditators, we become good communicators. Definitely. And our intuitive abilities Yes. also become so much better. We know intuitively what is the right thing, how to move forward, what is the right choice to make in life. So it's so interesting, you know, this field is so, I mean, it's worth exploring. So in simply words, the lawyer can enhance their practices, ma'am. कुछ क्यों नहीं Like she बिल्कुल said, जैसा मैम ने बोला था Definitely, कि ma'am. अगर आपका ब्रेन, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, ऑब्वियसली अगर माइंड हेल्दी है तो लॉयर एनी डे हेल्दी है. सब कुछ हेल्दी है उसके आसपास थोड़े से टिप्स हैं अपने आप को संभाल के रखने के लिए अपने मन को संभाल लिया तो जग संभाल लिया बिल्कुल अपने आप सही. ही जो होगा वो अच्छा ही होना है और एक सबसे बड़ी Yeah, that बात is called mental hygiene, ma'am. You are talking about mental hygiene. Yeah, ma'am. बिल्कुल बहुत जरूरी है बिल्कुल जरूरी है और थोड़ा समय अपने पे देंगे तो ये हाइजीन हुई जैसे डेंटल हाइजीन होती है वैसे ये मेंटल हाइजीन है ही so more we look after Perfect, ourselves the more we are getting the capability of looking after others minds also देखिए एक खुश मन जो है वो सबका मन खुश कर सकता है एक दुखी मन दसियों का मन दुखी कर सकता है तो हमें अपने मन को उतना स्ट्रांग करना है कि हम जहाँ पे भी जाएं वो हमारी प्रेजेंस से बात हो और ये सो प्रेजेंस सबसे ब्यूटीफुल. ज्यादा किससे क्लियर अप होती है विद ऑल दीज प्रैक्टिसेस यू नो वो हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चौखा होए वही बात हो जाती है जीवन में So beautifully put, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. It was really amazing. इस सेशन Thank you so को much, ma'am. हम यहीं समाप्त करेंगे. इस सेशन को समाप्त करने से पहले मैं अपने सभी लिसनर्स से एक अपील करना चाहूँगा कि इन दिस पेंडेमिक प्लीज़ डोंट टेंस. और अगर कहीं भी आपको कोई लीगल प्रॉब्लम्स हैं तो ऑल इंडिया लॉयर्स फर्म हमेशा आपके साथ है. हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स, हमारी पूरी टीम थ्रू आउट द इंडिया आपके साथ है. प्रो बोनो Just के reach out to us. प्रो बोनो बेसिस पर हम पूरे हिंदुस्तान की जनता के साथ हैं. कहीं भी आपको स्ट्रेस नहीं लेने की ज़रूरत है. कोई भी अगर लीगल आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमारे पास कांटेक्ट करें. हम आपको प्रो बोनो बेसिस पर आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे और आपकी पूरी मदद की जाएगी. थैंक यू. ब्यूटीफुल Thank you once again. Thank you, all of you. I had a good time having a good conversation with all of you. It Same. turned out beautiful.